Okay, Shin. Now start the class. You all, I hope you are logging with the your laptop and desktop. And today's session will start. We first start with binary search implementation, and then we can make a program for linear search. The two basic program is mandatory to you, at least implemented in your system and present to me. ठीक है? So to start your program, how many students say you can easily implement these program? You can study in various kind of searching sorting algorithm in your theory classes. At this class, you can implement your uh, theory concept and practical by using the C language, and you can use different software as usual uh, uh, availability in your system. You can also use online compiler if you have don't if not having the software like C++ and Dev C, etc. So now started and presented to me. If any student the last class also revise, some student implemented the program in your in system and presented to me, and some kind of difficulties. Some student having a find out able to find out the error. Some student only analyzing how to implement. But in this particular class, all you must implement the program and present to me. Okay, I waiting for your response and your answer. Then उसके बाद then after two program we then move to next program frames any fractional matrix problem. Okay. तो जिन बच्चों ने कल की क्लास में लास्ट क्लास में अच्छा से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि वो आज भी इस क्लास में अच्छे से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. एटलीस्ट टू प्रोग्राम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास. At least four program is student target implemented in that. First binary search, second आपका linear search, third matrix multiplication, fourth fraction lapse problem. All these this program is you can study in your theory classes. You can implement here. All the program are available. Okay, student, who is implemented successfully? Yes, I give some basic questions for that for implementation. Sir, can I present? Yes, yes, you can present.
If you successfully implemented your program, you can present to me and explain how to, which methods, and what the best solutions you have applied to solve your particular problem. I have four problems. Today class objective. Okay, you can present if you done successfully. Sorry, sir, I just left the meeting. I'll present. Okay, fine. Don't worry, you take the 5 minutes. Sir, I'm not being able to share my screen. Okay, beta, which kind of problem you have faced? Why not present? If you see your desktop, where is a icon for arrow in the center? You can click on this icon and where is your option presented whenever moving the mouse over icon. So where the message showing the present now, then after the present now, tab is open. Where is a Chrome tab, window tab, entire screen? You select, click on entire screen. Then click on entire screen and like where niche two option given by the Google. First cancel, second is share. So click. ओके स्टूडेंट प्लीज प्रेजेंट बच्चे कौन प्रेजेंट कर रहा था इसके देखो यहाँ पे एक बटन है आपके पास आप शो कर रहा होगा यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका स्टॉप का रहा है जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रीन प्रेजेंटेशन का ऑप्शन देगा ठीक है Yes, sir, I'll try again. हाँ सर फिर कुछ ट्राई करो एरर आ बच्चे रहा था इसीलिए नहीं I'll नहीं try हाँ again. वो सम टाइम नेटवर्क का इशू रहता है बच्चे उस वजह से Yes, मेरा क्या था एक्चुअली दो क्लास एक साथ थी मतलब टाइम क्लास हो गया तो उसमें उस टाइम स्टूडेंट ने फोन कर दिया अब एट ए टाइम तो मैं एक ही जगह रहूंगा ठीक है तो yes, अभी sir. मैंने एडजस्ट करवाया वहाँ से एमसीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे ठीक है आप लोग एमसीए फर्स्ट के हो ना Yes, sir. तो आप लोगों में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ठीक है तो करो टास्क ठीक है Okay, sir. मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ आप ट्राई करो Okay, sir. Sir, this is my program of binary search algorithm. Sir, yes I yeah, you can explain and first of all you run if the successfully run then you okay, explain okay, sir. So we'll first put the number of elements we want to in the array, and then we'll okay enter number of elements. Sir, so yes first here I have also implemented sorting algorithm. So since okay the my binary search can only be implemented on a sorted array, so I have also okay implemented a sorting algorithm. For that, I have used selection sort. okay okay very good So, sir, here after entering the elements, it has sorted the array
in ascending order, and now I'm searching the element number 32 Uh, here, sir. It has found at index 2, position number 3. Very good. Why is two? Give a reason. Why not give the three? Sir, it give 2 because the index starts from 0. Okay. That would Or be you 0, can 1. element is stored in array. The array in this thing start from zero. So n Yes. minus one is showing the element is the position second index Yes, second. sir. Okay. Yes, sir. Very That's good. Very good. Now you can explain your logic program. What do you think? okay, sir. Show your program. Okay, sir. Sir, this is my program. Here I have Mhm. included a preprocessor directly first, and then I have made a function. This is the sorting function where I have used selection sort and have taken array, and n would be the input. I have used two loops, that is I and j named, and then for indexing I have used minimum min index, min idx variable, and then there is this temporary variable. Here I have started the loop. This is the first loop, this is the second one, and after the loop one, here goes the swapping thing happens with the minimum element. And after that I have declared a function, binary search function, in this area, in this column. Okay. After that, here I have started my main function, and then from here I'll get I have declared all the variables that is needed, and then from here we'll take input from the user. That would be, first input would be number of elements they want in the array, and then take the elements number, whatever elements they want to enter. And from here we have called the sorting function, and firstly it would sort the array, since binary search is only possible on a sorted array. So Yes. Yes. after that it will display the sorted array, and from after that it will ask for option that what element we need to be found, we need to search in binary search, and then it would show the element that is to be found. If the element is not in the array, it would show output as element not found in the array. Okay. Do you think if the have any condition which is freely imply on binary search predefined condition? So the predefined condition would be that the array should be sorted, otherwise it won't found the Okay. element. Okay. Any disadvantage with these algorithms? You think about some disadvantage attached, yeah, having the some disadvantage in this algorithm. Sir, If I you think, think, yeah, sir, I think the sorted array thing is the major disadvantage of this algorithm. okay. Otherwise, complexity is a minimum, no? Login time. Yes, sir. Because you see the binary C logic, because the whole array is divided in two part, low and high, divided by two half, and again with same process is doing. So it's create the tree like structure, tree like structure, and tree having the complexity is log n. Any number of element or height of tree is log n. ठीक है? Yes. That's why is as per others algorithms is take the less complexity and less time and space complexity. ठीक है? It's Yes. very good. ठीक है? Sir, Next is binary. Next, I have also give the one question, linear search. So which sir, kind of changes? sir, I have also done the linear search algorithm Okay, okay. implemented. Uh, Can I show you this also? can explain Okay. first, then explain. Yes. So here first we'll take the number of elements we want in an array, and then we'll Mm. define the array. Okay, After that we'll enter the element that we want to search okay. here.
So this is I've entered the element. This is my array with elements 25, 14, 58, 65, and 49. And I've searched the element 49 that has been found in index 4, position number 5. Okay. Okay. Explain the logic part. Okay. So here I have since linear search is an algorithm where it doesn't matter if the array is sorted or not, it will find the element. So we don't have to apply any sorting algorithm here. So directly the search algorithm I've applied, and here I've defined a function for the linear search algorithm where array int, and there would be a target number that what target we need to find. And for that I have used an loop that which has been given name as I. And after that I've here declared the main function where first the function first it will ask for the number of elements we want to enter, the size of array basically that we want, and then we'll enter the elements of the array. After that we can search the element we want to find in the array, and after that it is found, it would show, and if the element is not in the array it would show element not found in the array. Okay, very good. Good. Uh, yeah, in this case, we have compared the each and every element with targeted element. Yes, sir. Yes, no? Okay, very good. So that's all. Okay, thank you. Thank you, sir. Next, you can try other two problems. I think you have to measure two each and every student must be employed at least two out of four. You can complete your task. You further try some more programs. Okay. You Sir, can like actually, I'm in office and actually, I was in a meeting. The meeting just stopped for a while, so now I have to go back actually. So, okay, okay, I okay. thank you, sir. Okay, you can continue your work. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Next student, next student, anyone else who can complete the task? I have present four questions here on screen and give the task. You can complete it one by one and present it and implement in your system because the lab is totally about how to implement your logic, how to implement your program, because this is not a theory lecture, this is a practical session. You can must be implement program in your system and then you can present. I give the four question on the screen. You can implement one by one. I take the call and you can present your answers. Dear student, you can see on your desktop, ठीक है, I presenting the four questions. You can implement first, implement the binary search algorithm. Second, implement the linear search algorithms. Then after, you can go for already in last class. If you remember, we can all implement the bubble sort. We can now if you not implemented, please implement it. All these question is come in your exams. Last is implement the fraction left algorithm and found out optimal result for the problem given below. You can study this problem in your theory lecture. Right now, you can make a program and implement this program. First of all, implement both two. This is a basic fundamentals and program. When we are able to implement these programs, then further you can move like this kind of programs.
And one question also I have given to, you can also implement the matrix multiplication, addition, because this kind of question asked in your in practical examination. So I'm waiting for your response. You can implement and share with me and your implementation. First of all, these two programs, then go for fractional knapsack problem, then go for matrix multiplication program and explain the logics. How do you implement? What do you think about these uh, algorithms? You take any scenario, you take any logic, you take any number and make necessary assumption when needed to complete this task. You can also use online compiler if you don't have software in your system. Hello, sir. Hello, Manji. Pradeep this side. So, Pradeep, you can actually, tell. I'm facing. हाँ जी, एक इशू फेस हो रहा है मेरे को। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो में बनाया है, लेकिन ना बिल्ड सक्सेस नहीं हो रहा, जबकि कोड मेरे को लग रहा है ठीक है। एक मिनट में So प्रेजेंट करूँ will we आपको? see? हाँ हाँ बिल्कुल प्रेजेंट करो। हाँ जी। ऑनलाइन कंपाइलर को देख लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर जो अगर उस पर सक्सेसफुल हो जा रहा तो आई थिंक प्रोग्राम तो ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो। ऑनलाइन कंपाइलर ऑलरेडी है आपके पास। विजुअल स्टूडियो था मेरे पास, लेकिन मैंने C++ में ट्राई किया था। सी नहीं थी मेरे पास, C++ में ट्राई किया अच्छा था। C++ में ट्राई, लेकिन एक ही चीज है वो, एक ही हाँ चीज है हाँ, वो C++। मैंने हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बैकवर्ड कंपैटिबल तो है ही, तो मैंने प्रिंटफ वगैरह यूज़ किया है उसमें। लेकिन समहाउ उसमें कुछ इश्यू आ रहा था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई करूँ? हाँ एक बार ऑनलाइन देख लो। सम टाइम होता है कोई ना कोई लाइब्रेरी फाइल मिसिंग होती है व्हेन यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। सम हाँ, टाइम हाँ। लाइब्रेरी फाइल मिसिंग होती है जिससे वो लाइब्रेरी फाइल अगर उसमें नहीं होगी तो फिर वो फैच ही नहीं होगा, सम एरर प्रोड्यूस करता है। तो ऑनलाइन एक बार कंपाइलर ले लीजिए, उस पर अगर एग्जीक्यूट के सही आंसर दे रहा तो फिर ठीक है, ठीक फिर है, देखते हैं, नहीं तो है ना। ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। Okay. कौन सा किया था वैसे आपने? सर मैंने बाइनरी वाला ट्राई किया था। ठीक है प्रदीप, एक बार टर्बो सी पे आपने इम्प्लीमेंट किया है क्या? क्या एरर आ रहा है? नहीं, नहीं सर, विजुअल स्टूडियो पे किया है, टर्बो सी पे नहीं किया। ये एक्चुअली मेरे को मेथड का ही एरर दे रहा है डायरेक्टली ना। मेथड का दे रहा है ना। वो ये कह रहे हैं, मैंने एक्चुअली में एक बाइनरी सर्च मेथड बनाया, लेकिन जब हाँ मैंने उसे दूसरी फाइल में डाला, सीपीपी फाइल में, वहां से फेच नहीं कर रहा है। सेम फाइल में डाल रहा हूँ तो भी फेच नहीं कर रहा है। मतलब आइडेंटिफायर नोट फाउंड आ रहा है उसके लिए ना। मतलब उस मेथड का नाम आ रहा है, फिर आ रहा है आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। ओके। एक्चुअली विजुअल मैंने नहीं यूज किया है तो इसलिए मैं उस पर नहीं बता पाऊँ, या तो मैंने ऑनलाइन या टर्बो सी हाँ पे। हाँ, नहीं मैं अभी सर दूसरा एक बार देख रहा हूँ कि देखो ऑनलाइन। मेरे पास जो है, मैंने अभी सेम कोड को ऑनलाइन पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है। चाहो तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विजुअल अपने आप करें फिर उसके बाद बताएं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली पहले मैं को ट्राई करना चाह हाँ रहा था क्योंकि विजुअल। जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हो ना, वो उस वाले उस पे मैंने नहीं किया हुआ, तो उसमें क्या है कैसे है वो वाला तो मुझे दिक्कत है। मैं तो प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन पे, दो पे मैंने किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं एक तो बार ट्राई करता हूँ सर, मैं तो अब यहाँ बता। पे हाँ जी, हाँ जी, सुनील सर, ये ऑनलाइन चला लिया मैंने इसको। चल गया क्या? हाँ हाँ, ऑनलाइन चल गया है ये। मेरे को एक कंपाइलर मिल गया था ऑनलाइन। अच्छा चलाना, मुझे प्रेजेंट करोगे क्या? हाँ, मैं भी आपका। अच्छा मैं देव डाउनलोड किया, मैंने देव भी अच्छा है वैसे। अच्छा, आप विजुअल स्टूडियो, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करा है। एक बार उसमें एक्सटेंशंस वगैरह की ऐड करनी पड़ेंगी लग रहा है। देख लेना, आप सेटिंग करा ऑनलाइन रन करो आप। हाँ, मैं एक मिनट आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। मेरे को बताना आप मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। हाँ मैं बताऊँ, हाँ यस योर स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ओके सर। तो एक मिनट है ना, मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। हाँ हाँ, मैं श्योर। एक मिनट है ना, मैं कुछ रन कर रहा हूँ।
इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। जैसे मैं एक बार रन कर लूँ जरा। हम्म, ठीक है, आप दिखाओ आप लोग। हाँ हाँ जी सर, ये एक ऑनलाइन जीडीबी करके है कंपाइलर ना कोई, तो उस हाँ पे ठीक है। हाँ सी में ही फिर मैंने उसको आई स्ट्रीम के बजाय मैंने stdio h डॉट एच ले लिया, मैंने सी का प्रोग्राम बना दिया, बस सिर्फ ऊपर यही चेंज करना पड़ा मेरे को हैश इंक्लूड में ना। उसमें अच्छा मैंने अच्छा। आई स्ट्रीम लिया हुआ था सी प्लस प्लस में, यहाँ पे बस ये लिया, बाकी तो प्रोग्राम सेम ही है। तो इसमें चल रहा है बस, ओनली बस हेडर फाइल के चेंज करने से पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है ना। हाँ 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 बिल्कुल सही चल गया सर। इसने मैंने इंडेक्सिंग में थोड़ा सा एक चेंज कर दिया कि अब ये जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं ना, ये हाँ मैंने हाँ एरे एरे बना ली इंटरनल यहाँ पे। हाँ हाँ और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करने के लिए कि भाई 77 कौन से इंडेक्स पे है इस एरे में, हाँ तो ठीक है वो फाइंड आउट किया। यहाँ पे मैंने एरे की लेंथ निकाल ली एन से, ठीक है ठीक है। और फिर ये बाइनरी सर्च का जो मेथड बनाया, इसमें एरे और जो इंडेक्स फाइंड करना है लो हाई पास कर दिया मैंने। लो ठीक इज, है है ना। तो ठीक ये है। काइंड ऑफ ना वैसे चलेगा, इटरेटिव नहीं है हाँ ये, डिवाइड एंड कंकर वाला जो हाँ पार्ट हाँ, तो वैसे। बाइनरी सर्च जो होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर ही होता है ना। हाँ बिल्कुल जी, सही। हाँ जी सर, उसमें ही मैंने चलाया है। बस इसमें ये चेक कर लिया कि एक मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, मिड इंडेक्स फाइंड कर लिया काइंड ऑफ, है ना। अगर उस हाँ, मिड मिड इंडेक्स पॉइंट पे, मतलब कि अगर आपका की आप जो सर्च करो वो हिट होगी तो वो आपको रिटर्न कर देगा, हाँ अदरवाइज वो रिटर्न आएगा। सिंपल सा हाँ है जी इसका। हाँ जी हाँ जी, इसमें बस वो हम इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पे अवेलेबल है हमारा जो भी एलिमेंट ठीक। है। और इसमें बस मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, जैसे भी आपको ना 5 दिख रहा होगा यहाँ, एलिमेंट इज हाँ फाउंड इंडेक्स 5, है हाँ ना। तो 5 मैंने थोड़ा इसके अकॉर्डिंग किया है कि लेमन टर्म में अगर देखें तो ये कोई भी से 1 2 3 4 5 ही बोलेगा, है ना। क्योंकि हाँ किसी लेमन टर्म में उसको ये नहीं पता होगा कि ये 0th इंडेक्स होता है 33 पे। हाँ हाँ। तो मैंने बस यहाँ पे +1 कर दिया रिजल्ट में ना यहाँ पे। अच्छा, आपने अच्छा +1 हाँ कर दिया, मतलब जीरो की जगह स्टार्ट का हाँ आयरन में हाँ एक exactly। आदमी में हाँ बढ़ा मतलब दिया। मैं यूजर को ये दिखा रहा हूँ कि हाँ भी उसको जो है 5th नंबर पे है ये एलिमेंट, तो वो 1 2 ठीक 3 है 4 ठीक है। 5 करेगा तो अदर 0। हाँ, अदरवाइज वो 4 पे दिखाता। एग्जैक्टली वो 4th पे ही है, हाँ जी हाँ जी। तो ठीक मैं है ठीक बाकी भी इसी के अंदर ही बना देता हूँ, लीनियर और है। बाकी आपने बोल दी। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, रन मैं हो रहा है ना इसका कहाँ पे? मैं हाँ जी, मैं अपने इसमें प्रैक्टिकल वाली उसमें जो है लैब रिपोर्ट में इसी का ही स्क्रीनशॉट लगा दूंगा फिर, है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक चीज और, हाँ जी बस भी जो लॉजिक है ना, लॉजिक में जैसे डिवाइड है, थ्योरी क्लास में अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लो और हाई का क्या कंसेप्ट होता है, ये सारी चीजें, हाँ ठीक नहीं है। नहीं सर, वो तो आपने बता ही दिया था ना कि जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला थ्योरी में भी हाँ पढ़ाया था। बिल्कुल सेम वही है, और इसमें ट्री हाँ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हाँ जी, इसीलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, बेस केस एन लॉग एन आती है, एन क्योंकि लॉग ट्री एन की जो आती है। हाइट, हाँ ट्री की हाइट जो होती है वो लॉग इन होती है। और जी एन जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नोड्स जो उसके हैं। तो मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं, जो एन हो सकते हैं। ट्री एन की हो सकता हाइट उसमें इंटू हो जाएगा, इंटू है। हाँ जी लॉग एन। हाँ जी ठीक हाँ है, तो इसमें आ जाएगा। आपने और भी पढ़ा होगा, 3 मेथड्स हैं अपना एल्गोरिथम्स, आप पढ़ना जरूर उसको। एक जी मास्टर मेथड है, हाँ जी रिकर्सिव मेथड, हाँ जी। रिकरेंस सॉल्विंग के मेथड्स, जिसमें ये आपके थ्योरी एग्जाम में जरूर जाएगा, ठीक है। ओके उसमें सर। आपका मास्टर मेथड है, ट्री मेथड है, अकराबाजी मेथड्स है, ठीक है। हम्म अकराबाजी तो इतना यूज नहीं है, बैक सब्स्टिट्यूशन और बैक फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। उसमें दो होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मतलब हम्म मास्टर मेथड मस्ट भी आपको आना ही चाहिए, और ट्री मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और हम्म, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में आप बिगो ओमेगा थीटा, ठीक है, ओके वो जरूर पढ़ना। तो ठीक उससे ये क्या सारी कंसेप्ट आपका अलाइंड हो जाएगा, ठीक ठीक है है। कि ठीक है। किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, मास्टर मेथड तो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बिल्कुल आए रहते हैं सॉल्विंग के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ठीक सर है। आप जो वो बोल रहे हैं एकराबाजी, वो क्या है वो नहीं, वो अकराबाजी मत मेथड, वो भी एक्चुअली रिकरेंस सॉल्विंग का ही मेथड है, लेकिन वो बहुत फास्ट है, जस्ट लाइक ए बॉम्ब। ठीक है, वो बहुत है कॉम्प्लेक्स, ओके जनरली उसकी जरूरत, उसको जनरली जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। अच्छा जनरली सर हम वो टीम से ही तो काम कर लेते हैं। और हाँ सबसे जी आसान है, 85% जो केसेस है वो मास्टर मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। मास्टर्स हो जाते हैं, केवल राइट। आपका 2% जो केसेस, 20% मान लो केसेस ऐसे हैं, हम्म, वो आपके सॉल्व होते हैं उससे, क्या नाम है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं। हाँ कुछ जी केसेस उस पे जाते हैं, तो आपका 90-95% आसानी से हो जाता है। जो चीज आप मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो चीज आप ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। ओके ओके ओके, तो ठीक है। दो तीन, स्पेशली ट्री मेथड आप देख लेना हाँ जी। और मास्टर मेथड देख लेना, इसमें फ्लैट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, बिग ओमेगा एंड थीटा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू जी। तो ट्री की हाइट कितनी है, तो लॉग इन, कोई पूछे ट्री की हाइट कितनी होती है, लॉग इन। इसका डेरिवेशन भी है ट्री वाला, वो आप हाँ, देख लेना। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरव्यू हम्म, एंड तो वेयर इज नॉट आस्किंग द कोड एंड ये सब की, लाइक वो ओनली गिव द कंसेप्ट की दिस इज अ आपका बाइनरी सर्च। तो हाँ जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विच प्रॉब्लम, क्या स्ट्रेटेजी है इससे, तो पहला आंसर है डिवाइड एंड कॉन्कर में बेस है। हाँ दूसरा जी, पूछते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन क्यों है, समझाइए, ठीक है। एंड हम्म, लॉग इन क्यों है, तो आप उसका आंसर इस तरह से दे सकते हो कि इस फॉर्मिंग द ट्री लाइन स्ट्रक्चर, हम्म, ठीक है, हाफ एंड हाफ आपका डिवाइड होता जा रहा है। उस हिसाब से आप अगर ट्री का ये मेथड लगाएंगे, रिकरेंस मेथड, या हम इसका रिकरेंस रिलेशन बना के अगर सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मास्टर मेथड, तो दैट केस वी फाइंड आउट आफ्टर द सोल्यूशन एंड लॉग इन। तो आप ये दोनों चीजें आप देख लेना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ ठीक है, जी। चलिए अगला बनाइए, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। मैं वो बना के दिखाता हूँ हाँ, आपको। बाइनरी, बाइनरी सर्च, हाँ, मैं नहीं लीनियर, बाइनरी तो क्या, लीनियर, लीनियर, लीनियर हाँ लीनियर लीनियर। बना। हाँ जी, हाँ जी और these basic program is the base and foundation it provides to student, है ना। सर, राइट ठीक सर, है। राइट। थैंक यू सो मच। प्रदीप, एक बार आप इधर देखेंगे क्या? हाँ जी सर, बोल रहे थे क्या? हाँ प्रदीप, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था ना, जो कंसेप्ट की भाई ट्री की जो हाइट, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आप हम्म, बना रहे थे ना, और वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी, हम्म, वो एन लॉग एन कैसे आती है, एन, आप देखना ना, वो यही लिखा रहेगा एन लॉग एन, है ना। हाँ, हाँ जी, ये मिल गूगल रहा है। का, है ना। हाँ ये जी, आने का पीछे का रीजन मैं बता रहा था आपको, कैसा क्यों होता है। देखो, सिंपल से बात, ये आपका, आपको डिवाइड एंड कॉन्कर का भी कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि बेस्ड ऑन डिवाइड। देखो ये लिस्ट पूरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही हाँ है जी, कि नहीं। फिल्टर आउट, हाँ जी, फिल्टर आउट कर रहे हैं इसको, करेक्ट, हाँ। ये ना, ये डिवाइड हो जा रहा है। हाँ तो जी, अगर आपने पहले ट्री आपने बनाया होगा, तो प्री कंडीशन क्या है कि लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, है ना। तो सॉर्टेड होगा, करेक्ट, तो आप फर्स्ट हाँ। एलिमेंट आपने यूज किया, लेफ्ट साइड में आपका, इससे इस, वो अगर ये रूट है तो इससे छोटे एलिमेंट लेफ्ट में आएंगे, है ना। राइट, इससे बड़े एलिमेंट राइट में आएंगे। ये हाँ तो जी, बेसिक फंडा आपका लो और हाई वाला हो गया ना। हाँ और जी, एन बाई, और डिवाइड बाई टू कर दिया आपने, है ना। तो करेक्ट, उस हिसाब से वो हर बार ये हर लेवल पे हो रहा है। हर लेवल पे मेरा जाए। ये था कि एन लॉग एन आने का मतलब क्या था इसका, कि अगर आपने ट्री की थ्योरम पढ़ी होगी, तो अगर इसकी ट्री की हाइट क्या होती है, अगर ट्री की हाइट जनरली लॉग इन होती है। लॉग बहुत इन, सिंपल शॉर्टकट, हाँ बता रहा हूँ। हाँ और जी, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बहुत अगर हर बार डिवाइड करके मैथड्स में, वो मैथड मैंने बताया उसे पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ट्री की हाइट लॉग इन हो गई, यानी इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, लॉग इन हो सकती है लॉग ना। इन, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें नोट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एन हो सकते हैं। एन ही होंगे, करेक्ट। हर बार लिस्ट डिवाइड होती, तो आपका हम्म, सीधा सबको बनना एन इंटू हाइट, लॉग इन, हाइट वाला जो है, हाँ जी, यही करेक्ट, होगा, है बिल्कुल, ना। तो आप लिख सकते हैं एन लॉग एन एन, हाँ जी, ठीक है। अगर आप ये मास्टर मेथड यूज कराते हैं, इसकी रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगी, तो भाई इसकी रिकरेंस रिलेशन क्या बनती है, अगर कोई प्रॉब्लम टी एन है, ठीक है, तो हम्म, इसमें क्या है, मान लो लिस्ट हर बार टू टू हो रहा है ना, तो हम्म, टू टी एन बाय टू, ये आएगी, है ना। करेक्ट, करेक्ट देखो सर, ये कैसे है, दो बार हमने कोई प्रॉब्लम थी, ये एक इस बार एक बार इस बार के, और हम क्या करें, हाफ करें और इनटू प्लस करके एन आ जाएगा। तो इस पे क्या लगाओगे आप, इसमें मास्टर मेथड लगा सकते हो,
ओके। ठीक है, हाँ जी। सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम्म, मास्टर मेथड थ्योरम। दूसरा आप क्या, ट्री थ्योरम भी लगा के सॉल्व कर सकते हो अगर इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ओके। इससे आपका ये वाला जो टर्म है ना कॉम्प्लेक्सिटी वाला, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, राइट, राइट। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा अपने को लिंक करके चलना है ना। ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो ठीक है, ओके, आप करो अब। हाँ जी, मैं कर लूँ। सुनील सर। हाँ, आपने बना लिया क्या? हाँ, लीनियर वाला बना लिया मैंने सर। प्रेजेंट करना, हाँ, हाँ। और कैसे काम करता है ये भी बताना। ठीक है, लॉजिक। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूँ। स्क्रीन शेयर की है सर मैंने। हाँ जी, इसमें ही मैंने चेंजेस कर दिए हैं, बस मैंने एरे डिफरेंट ले लिए इसमें एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, और चल रहा है इसमें सही। हाँ, हाँ सर, मैं नीचे चला के देख लिया। ये ठीक है, देखिए, चलिए। मैं इसको अगर रन करता हूँ ना तो ये नीचे चल जाता है। तो इसमें ठीक है, काइंड ऑफ जो मेरी कलेक्शन है एलिमेंट्स की, तो वो मैंने अब अनसॉर्टेड भी ले सकते हैं, किसी भी उस फॉर्म में हाँ ले इससे, सकते हैं हाँ काइंड ऑफ। इसमें ले सकते हो, हाँ इसमें ले हाँ सकते जी। और इसमें ये जो एक्स है, ये काइंड ऑफ वी नीड टू सर्च कि भी ये एलिमेंट है नहीं है इसके अंदर। हो। ये सेम वही साइज निकाल लिया इसका एरे का। और फिर ये बाइनरी सर्च की बजाय मैंने लीनियर सर्च का जो मेथड बनाया है वो यूज़ कर लिया। इसमें जो पैरामीटर्स पास करने, तो जो कलेक्शन है वो पास कर दी, और जो एक्स जो सर्च करना है वो, और टोटल उसकी लेंथ जो एरे की है। वैसे तो हम यहाँ भी निकाल सकते थे ना सर, वैसे यहाँ पे एरे की क्या? लेंथ, एरे हाँ की लेंथ। निकालने तो, हाँ निकाल सकते बट हो। इंस्टेड की फिर हमारे पैरामीटर्स कम हो जाते हैं मेथड में। चलो कोई नहीं, अब नहीं हाँ, कहते। हाँ, अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका एक लोकल वेरिएबल बना लिया मेथड का, एट इंडेक्स, जो कि -1 रिटर्न करेगा अगर एलिमेंट नहीं होगा। तो डिफ़ॉल्ट ये है, फॉल बैक काइंड ऑफ। और एक आइट्रेशन लगा दी है इसी कलेक्शन के ऊपर, जो कि एन तक, एन मतलब अब 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि 0th से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग एरेज़ के अंदर। और लेस देन एन रहेगा, क्योंकि एन की वैल्यू एग्जैक्ट वही होती है जो टोटल, अगर इसमें 7 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उतनी लेंथ आती है उसकी, है ना, क्योंकि एरे का साइज वही आएगा। हाँ। और फिर आई प्लस प्लस करके, मतलब हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और जस्ट फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं कि इस एलिमेंट, इस इंडेक्स पे ये एक्स है, अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो इंडेक्स जो एट इंडेक्स हमने ऊपर -1 सेट किया था, उसकी वैल्यू चेंज करके आई कर दो। लेकिन अब हाँ। जैसे ही क्योंकि मिल जाता है, तो हमें फिर फर्दर मूव करने की जरूरत नहीं है ना। हम्म, हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं अपने लूप को, फॉर लूप हाँ। को। और फाइनली ये जो इंडेक्स आया है, यही हमारा रिजल्ट है, इंडेक्स। ये तो ठीक यही, है। हाँ जी, बस वही रिजल्ट +1 करके मैंने वो एक यूज़र को ये शो कर दिया कि अब ये इस इंडेक्स पे है। जैसे ये 9th अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो इस इंडेक्स 7 पे है। और सिमिलरली अगर मैं 77 सर्च करूँ इसमें, तो ये इंडेक्स 5 पे आ गया था। हम्म, तो अगर ये, इसको यूजर से बनाना है तो यूजर इनपुट लेना, मतलब आपका जो एलिमेंट है यूजर से इनपुट जाए, और फिर आप सर्चिंग यूजर से करवाओ, तो क्या मॉडिफिकेशन करोगे आप? सर उसमें एक तो एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है, इसको ब्लैंक रख लेंगे स्टार्टिंग में, है ना। ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा। ये जब भी प्रिंटफ है, तो उसमें एक यूज़र से भी इनपुट लेना पड़ेगा। हाँ तो और इसको कर दो, चेंज चेंज करो। अच्छा, चेंज करके फिर प्रेजेंट करो, 2 मिनट ले लो। अब हाँ, 15-10 मिनट में तो हो जाएगा। हाँ, हाँ, मैं एक बार इसके यूज़र से चेंज, इनपुट्स हाँ लेके फिर वो वाला, यूजर से, ठीक है सर। यूजर से करके लिखा उसको। हाँ, क्या ठीक, चेंजेस है, क्योंकि सब लोग को फिर ऐसे ही बिना यूजर वाला लेंगे सब लोग। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ यूजर जी। वाला। ओके। अच्छा, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन ही रहेगी ना इसमें तो? हाँ, इसमें एन रहने का मैं लॉजिक बता देता हूँ, एन क्यों रहेगी इसमें, हाँ, ऑर्डर एन रहेगी। उसका लॉजिक है कि बेस, इसमें 2 चीजें होती हैं, बेस वर्स, सब में होता है आपका, तीनों चीजें होती हैं, बेस वर्स एवरेज। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो इसमें बेस क्या होगी कि एक बार चला आपको पहला वाला मिल गया, तो हाँ जी, ऑर्डर 1 हो गई, है ना। करेक्ट। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, एवरेज क्या हो सकती है, वो ऑर्डर एन रहेगी। क्यों कि भाई किस पोजीशन पे, ये कैसे पता है आपको, हाँ या जी, तो पूरे लास्ट में मिल सकता है या एंड में मिल सकता है, तो इसका आपका ऑर्डर एन आ जाएगी। ऐसे ही बाइनरी सर्च में भी 2 केसेस बनते हैं। बेस्ट अच्छा, केस क्या होगा, उसमें भी होता है एन लॉग एन, तो आपका आएगा ही आएगा एन एवरेज, वो हाँ तो जी, एंड में आएगा एवरेज में। ठीक है, या वर्स। बेस्ट में क्या आएगा, हो सकता है आप जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, हाँ जी, पहली बार आपने सर्च किया और जो रूट
रूट ही उसका की नोड रहा, तो हिट कर देगा उस पे, आपका एलिमेंट बाहर आ जाएगा ना, तो हाँ जी। बाकी सब पे जाएगा नहीं। तो बेस्ट केस क्या है, इट डिपेंड ऑन कंडीशन, है ना। तो बेस्ट केस क्या होगा उसमें, उस केस में ऑर्डर वन ही 1 आएगा, क्योंकि भाई की ही हमारी आंसर मिल गया। करेक्ट। एवरेज और वर्स्ट क्या है भाई, एन लॉग एन तो ईच एंड एवरी केस में आएगा ही आएगा भाई, एलिमेंट कहीं भी रहे, हाँ जी। एन लॉग एन में तो सर्च कर ही लेगा। लेकिन हम्म, बेस्ट केस क्या होगा, ऑर्डर एन होगा। ठीक है, ऐसे ही Correct. बाइनरीज आपने बबल शॉट कल किया था आप लोगों ने, उसमें बेस्ट केस वर्स्ट केस में डिफरेंट आता है। ये हम्म, अकॉर्डिंग कैसे, उसमें बेस्ट केस होगा उसमें भी कि भाई ऑर्डर एन है, क्यों कि हो सकता है एक आपने लिस्ट आपने सर्च करना, अपने शॉर्टिंग स्टार्ट की, लेकिन हो सकता है लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दी हो, तब उस केस में क्या होगा, एक बार कंपैरिजन तो होगा ना, यानी लूप चलेगा, स्वैपिंग नहीं होगी ना। लूप राइट। चला एन तक जाएगा, एक इटरेशन में ऑर्डर एन आ गया ना। हाँ जी। वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा इसका कि भाई अगर लिस्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में गिवन है ना, हाँ जी। तब तो भाई तो सारी लिस्ट पूरा पूरा स्वैप करना पड़ जाएगा, करेक्ट। यस नो। तो करेक्ट। वर्स्ट केस आ गया, वो आपका ऑर्डर एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो और एक एवरेज क्या आएगा, एवरेज डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, तो हाँ आप जी। उसको देखना बेस्ट वर्स्ट, तो एवरेज भी उसमें ऑर्डर एन स्क्वायर है। ठीक है, हाँ जी। ऐसा क्यों, क्योंकि किस एलिमेंट पे आपको आएगा, आप गूगल करके देखना बबल शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट वर्स्ट सर्च, तो लॉजिक लेकिन वही है जो मैं बता रहा हूँ कि भाई एलिमेंट कैसा गिवन है। अगर बेस्ट केस कब देगा, जब एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो बबल शॉट बेस्ट केस देगा, बेस्ट केस देगा। है ना। करेक्ट। वर्स्ट केस कब देगा, जब एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में हो आपका। हम्म। और एवरेज कब देगा भाई, जब आपका किसी भी मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। तो करेक्ट। आप उसको सर्च करना, तो इस तरह से अपने को लॉजिक भी दिमाग में बिठाने हैं। ठीक हाँ है, जी। और सर ये जो आप अपना जैसे आंसर करना है थ्योरी का, तो उसमें भी हमें तीनों ही केसेस बताने पड़ेंगे फिर, है ना? बिल्कुल बच्चे, आप मास्टर लेवल के बच्चे स्टूडेंट हो, आप अपना पेपर खोल के देखना, हाँ। आपके जो लेवल इस लेवल का होना नहीं नहीं, चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बताइए बस, है ना? कॉम्प्लेक्सिटी तो कैसे बताओगे, एनालिसिस तो करना हम्म। पड़ेगा ना। हाँ, नहीं नहीं बबल नहीं, शॉट का इसमें कई एनालिसिस बार मैं क्या आपको होता है कि बताऊं, जो मैं हाँ दिखाऊं क्या, किस तरह से एनालिसिस करते हैं इसका, मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पेन ड्राइव है, दिखाऊं क्या, बोलो तो मैं दिखाऊं। हाँ हाँ, दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन हाँ हाँ, नहीं मैं बस उस पॉइंट से कह रहा था कि क्वेश्चंस के जैसे आंसर करेंगे तो हाँ उसमें मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे होना चाहिए, सही तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखो। मैं आपको बताता हूँ इससे होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कई बार केवल ना वर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्सिटी बता के आ जाते हैं हम लोग, तो नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये बच्चे तीनों एनालिसिस आपको तीन बतानी होती है, और तीनों उसका डेरिवेशन होता है पूरा, जो आपको केवल लिख देने से कोई मान लेगा क्या आपकी बात, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लिखने का तो कुछ प्रूव तो करना याद पड़ेगा। है, वो तो गलत चीज लिख देना, मतलब आप उसको पता बताना पड़ेगा कब कैसे क्या कंडीशन है उसकी, है ना। हम्म। ऐसे ही आपका क्विक शॉट का है, हर चीज का है, इसी तरह से चलेगा सिलेक्शन का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ओके ओके। इसमें देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चे ना, आप ध्यान से देखना, आपको पेपर इसी तरह से पढ़ना चाहिए और इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ आपको चाहिए तो मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, अगर गूगल ड्राइव पे है तो आप शेयर कर दीजिएगा। गूगल ड्राइव पे नहीं, मैंने तो नोट पे उस पर पढ़ा था ना, मैं स्क्रीन पे, तो आपको ड्राइव में शेयर कर दूंगा।
ओके। तो मैं इसी ग्रुप में डाल देता हूँ। देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे आपका मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम जैसे बबल शॉट है, तो मिनिमम में आपको जैसे एलिमेंट लिया, इसमें एनालिसिस आप स्क्रीन पे आ रहा है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, एक्चुअल विजुअल। में आता है जैसे, तो बबल शॉट अगर आता है, द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी बबल आउट कम फर्स्ट, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट। इफ द लिस्ट हैज एन एलिमेंट देन टेक n माइनस वन इटरेशंस। जो आप लूप में लिखते हो ना, 2 बार आप लूप लगाते हो, एक बिल्कुल। लगाते हो आपका इटरेशन के लिए, एक लगाते हो कंपैरिजन के लिए, है ना, जे हाँ और जी, हाँ जी, आई, है ना। तो हाँ उसकी जी। बात कर रहा है ये, ठीक है। राइट। उसके बाद कह रहा है ये मान लो ये एलिमेंट है, अगर n इक्वल टू 5 एलिमेंट है तो कितना 4 इटरेशंस लगे, यानी 4 4 इटरेशंस बार लगेंगे। वो आपका वो चलेगा, ठीक है। करेक्ट। अब आगे इसका चलते हैं नेक्स्ट, इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट अपना, उसके बाद ये 4 कैसे लगता है वो देखो आप। 1-2 महीने से बच्चों को सैंपल कर देखो। पहली इटरेशन में क्या होता है, एक्चुअल में इस तरह से चलता है। देखो इटरेशन 1, या आप लिख पास 1 कहीं कहीं लिखा होता है, तो उसमें क्या क्या स्वैप होता है ना, वैल्यू आप स्वैपिंग का कोड स्वैपिंग लिखते कर। हो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। जस्ट अपने नाइबर वाले से ही स्वैप कर सकता है, ठीक हम्म, है। तो देखो ये स्वैप कर रहा है, और लार्जेस्ट एलिमेंट, हर ईच इटरेशन पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, वही बबल आउट हुआ फर्स्ट, जो हमने वहां स्टेटमेंट डिक्लेयर किया था। देखो करेक्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट 5 आउट हो गया फ्रॉम द लिस्ट एरे। करेक्ट, करेक्ट। राइट मतलब इट रीच इट्स राइटफुल पोजीशन, राइटफुल पोजीशन मतलब कि सॉर्टेड, ठीक है। अगली इटरेशन क्या होगी, सेकेंड। अगली इटरेशन आप ध्यान से देखो, तो आपका यहाँ से अगेन सेम प्रोसेस टेकिंग, है ना। तो अगेन ये 4 इज सेट राइट नाउ, तो ऑल दिस इटरेशन इज डन वन बाय वन। तो इसमें एक और लॉजिक, ये आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, तो भाई पहले में 4 हुआ था, सेकंड में आप देखो यहाँ पे 1 हुआ, 2 और ये 3, है हाँ ना। जी, हाँ तो जी। सेकंड में हुआ 3, फिर हुआ 2, फिर हुआ 1, यानी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 10 आया। जो आप वो कंडीशन लिखते हो ना, वो सेकंड वाली हाँ, कंपैरिजन वाली, हाँ। उसमें आई के वैल्यू हर बार n-1 n-2 n-3 करके बिल्कुल। जाता है, यानी ऊपर से आके एक एक कम होता रहता है। तो राइट, दिस इज अ लॉजिक एक्चुअली में ना। राइट, राइट, राइट। तो नाउ अब इसके बाद हम देखें इसकी वो आपका एनालिसिस। तो ये इसकी एनालिसिस है, मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस इसकी। हम्म। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ बबल शॉट, ठीक है। ओके। वर्स्ट केस का ले लिया, बेस्ट केस का तो आपको मैंने बता ही दिया। हम्म। वर्स्ट केस में क्या होता है, एनालिसिस भी पूछा जाता है। तो वर्स्ट केस कब आएगा, व्हेन द लिस्ट इज शॉर्टेड इन रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर। तो जो आपने तो एग्जांपल में शो कर रखा हाँ, तो है। जैसा, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर फर्स्ट इटरेशन n-1 यानी 4, हम्म। नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सेकंड इटरेशन n-2, नंबर ऑफ कंपैरिजन थर्ड इटरेशन n-3। तो डॉट डॉट अगर ऐसे ही चलता रहे, तो nth पे जाने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजन nth के लिए, हाँ तो जी। n-1 nth पे क्या होगा, 1 आ वो जाएगा, क्यों, वन ही रहेगी। वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। 1 बच गया, तो हम्म। 1। तो आप फिर इन सबको ऐड करोगे, जब इसको ऐड करोगे तो आपका एक सीरीज बन जाती है मैथमेटिक्स से, n-1 प्लस n-, ठीक है, ये माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, आप ऐड कर डॉट डॉट n, तो एक सीरीज बन जाती है। करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n-1 डिवाइड बाई 2। तो 2। इसको आप ओपन करोगे, एपी की सीरीज बन जाती है ना ये, हाँ, बिल्कुल। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हाँ। हाँ तो जी। इसके बाद आप क्या, n इंटू एन, एन स्क्वायर, ठीक है, ये n। तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा होगा कि जो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो लीड करेगी वही आपकी पूरे सब डोमेन वही। की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, करेक्ट, है ना। वही। तो वही। यहाँ आ गया ऑर्डर एन स्क्वायर, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस ऑर्डर एन स्क्वायर आया। कर आया। बात समझ में आई? बिल्कुल। इस तरह से ये आपको पेपर में बताना है। ऐसे बेस्ट का कैसे बताओ भाई, एक लिस्ट ले लिया आपने, सबका कंपैरिजन करा दिया, इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो देन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन, भाई जितनी लिस्ट होती एक बार कंपैरिजन तो होगा ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। कंपैरिजन तो हर एक उसके केस में होगा। हाँ जी। हाँ, एक एक किस्त होगा ना, तो कितना होगा कंपैरिजन, जितने एलिमेंट्स है हम्म। है ना। तो इस बिल्कुल। तरह से आपको इसमें बताना है। और इस तरह देखो, ये रहा शायद बेस्ट केस, ये देखो, राइट। तो मतलब लिस्ट इज ऑलरेडी, इसमें क्या हो भाई, ये लिस्ट है, एक बार कंपैरिजन तो होगा, यानी 4 कंपैरिजन हुआ, लेकिन 4 एक्चुअली कांस्टेंट जो होता है, एक्चुअली हम कॉम्प्लेक्सिटी में दिखा ही नहीं सकते। तो भाई कांस्टेंट तो नहीं क्या दिखाऊं, तो n-1 कंपैरिजन यानी 4 आया। तो अगर इसमें बेस्ट केस यानी कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में बात करो, बिग ओमेगा थीटा, तो आपको ऑर्डर एन आपको आएगा आंसर। करेक्ट। बात समझ में आई? बिल्कुल, बिल्कुल। लॉजिक समझ में आया एक्चुअल में? तो हाँ दिस इज जी। अ होल सिनेरियो कि आपको इस तरह से पेपर में प्रेजेंट करना है, इस तरह से लॉजिक आपको, व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, तो उसका लॉजिक एक्चुअली मैथमेटिक्स ही है,
ठीक है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कैसे सोच रहे हो, वो सारा चीज वहीं से ड्राइव होता है। राइट। ठीक अच्छा, है, आप कह रहे थे ना इसमें कितनी बार स्वैपिंग हुई है या, है ना, तो वो वाला जो है इसमें वर्स्ट में तो जो है आपने बता ही दिया कि भाई हर बार ही स्वैप हो रहा है वो, करेक्ट? ये रहा हाँ, ये वाला कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब नहीं, स्वैपिंग। कंपैरिजन तो सर हर एक में ही हो रहा है, राइट? मतलब चाहे हाँ रिवर्स में हो या बिल्कुल सॉर्टेड हो, है ना, तो हाँ कंपेयर तो उसमें भी चल रहा है। हाँ लेकिन जो स्वैपिंग वाला लॉजिक है वो तो हाँ एक वर्स्ट वाले में ही चल रहा है, क्योंकि जो हाँ सॉर्टेड हाँ, है तो वो उसमें तो तो हाँ, स्वैप होगा ही नहीं, है ना? उसमें तो होगा ही नहीं। हाँ, स्वैप तो तभी होगा ना जब आपका ये रिवर्स ऑर्डर में जीवन होगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें तो स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एक बार कंपेयर हुआ उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है, आपकी कंडीशन ही ब्रेक नहीं होगी, तो आपका बिल्कुल। आंसर आ जाएगा, हाँ है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, एक चीज ये देख लेना आप, और ये जिसकी बात कर रहा था ये सब देख लेना आप लोग, ये पेपर में बहुत अच्छे लेवल की आती है, जैसे ये इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, हम्म। फिर ये देख लेना इस पे क्वेश्चंस, ये कंप्लेन, ये आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम्स है। ओके। वीगो ओमेगा ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है, इसके बिना एल्गोरिथम का कोई मीनिंग नहीं है। राइट 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 लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करना, राइट। हाँ, ये मतलब पांच से। मेजरमेंट, हाँ मेजरमेंट टूल ही नहीं होगा तो फिर उसका मीनिंग नहीं है कोई भी एल्गोरिथम्स को पढ़ने का भी, कि हाँ और भाई। मतलब पूरी एल्गोरिथम पढ़ लो, क्या मतलब है उसका, कोई हाँ, मतलब लॉजिक। अगर उससे प्रूव नहीं कर पाए कि आप हाँ भाई। देखो, हाँ हाँ जी। जैसे, बिल्कुल जैसे ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा रिकरेंस का, आना हम्म ही आना है फिक्स है, मैं बता रहा हूँ। हम्म। सिलेक्शन शॉर्ट का भी अगर आप कंपेरिजन करोगे तो इसी तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद वो सारी लॉजिक लगाओगे, ठीक राइट है। फिर राइट। उसके बाद आपका जैसे आप ये हम आप इसके बाद ये आप अगर आप ये बताओ, अब बाइनरी ये टाइप्स, तो इससे ना, ये जैसे ट्री की हाइट्स वाली बात की थी मैंने, ट्री की हम्म। हाइट मिनिमम, बाइनरी के मिनिमम मैक्सिमम कैसे आती है, देखो मैंने हम्म। हाइट बताया ना, मिनिमम ये रहा, हाँ ठीक जी। है। उसके बाद लेफ्ट कर्सिव सिबलिंग्स, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। समय आपके पास कम होता है लेकिन आपको करना, जैसे ये ट्री का आ गया, हाँ तो जी। ट्री के भी फर्दर नोटिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये ट्री की हाइट हो गई आपकी, ठीक है, राइट मैक्सिमम, राइट तो राइट, ये सब आपको ओके। देखना है। ठीक है सर, मैं एक ठीक। चीज और मास्टर मेथड पे आपको बताना चाह रहा था, वो हम्म। आप देख लो उसके बाद, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, थोड़ा सा गाइडेंस में। ये वो ट्री मेथड है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो, हाँ, यही बता रहे थे आप, करेक्ट। ठीक है। ये आपका मेथड है पूरा, इसको, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, ये आपका आ गया, प्रूफ है ओके, उसका। रिकरेंस हाँ वाले जो है, ओके, ठीक हाँ, है। ट्री मेथड, इसके बाद इस तरह से आपने बनाया। उसके बाद ईच लेवल पे इसमें कॉस्ट जा रहा है, ठीक है, ठीक हम्म। है। फिर ऐड ऑन होगा, फिर ये n/2 ये आ गया। इसके बाद आपका लॉग लेना पड़ता है, ट्री की हाइट लॉग ही नहीं क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है, भाई क्यों ऐसा आप बोल रहे हो, तो ये उसका प्रूफ है। ओके। आप टेक लॉग लोगे, फिर लॉग हम्म। को सॉल्व करोगे, तो एक साइड तो n log 2 की पावर बराबर हो गया, ये तो खत्म हो गया, बच गया आपका ये, है ना। तो राइट। जब बेस और लॉग बराबर हो तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया log n, 2 log n, ठीक है, इसलिए ये इतना है, अनलॉग एन ठीक इसलिए। है। एन तो टोटल एलिमेंट है, हाइट आपको आपने अलग से निकाली रहती है। हाँ जी। तो ये सारे लॉजिक आपको बच्चे को आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है जी, और ठीक है। एक मास्टर मेथड जरूर पढ़ना, ठीक है, वो क्योंकि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्विक शॉट आप पढ़ोगे, पूरा लॉजिकल पढ़ना है, केवल हम्म। वो नहीं कि ऊपर से हमने पढ़ लिया है, पूरा लॉजिकल, जैसे इस तरह से बताया ना कि ये है, मान लो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसका लॉजिक डिवाइड एंड कॉन्कर पे है, ठीक है। अगर ये इस तरह बढ़ रहा है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, भाई एक ही साइड बढ़ सकता है ना। राइट तो ये राइट। आ जाएगा। तो क्विक शॉट में ऑर्डर 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 एन स्क्वायर क्यों आता है, तो ये उसका रीजन हो सकता है कि भाई पाइवट एक ही साइड मूव करो, सारे एलिमेंट राइट के बड़े हों, तो उस राइट। केस में क्या होगा, भाई एक ही साइड मूव करेगा तो रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। लेफ्ट में तो ये ट्री ही इनका। नहीं बना, लेफ्ट में करेक्ट। तो बना ही नहीं ना, तो हाफ हाफ हम्म। हुआ नहीं, तो एन लॉग एन आएगा कैसे, तो उस केस में ये आ जाएगा ऑर्डर एन स्क्वायर, है ना। करेक्ट करेक्ट। और अगर दोनों साइड बराबर, जैसे अगर मान लो इधर और इधर दोनों बराबर हो, तो उस केस में एन लॉग एन आएगा, क्विक शॉट, एनलॉग एन, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ अब जी। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है नहीं इसका रिवर्स,
कि भाई आगे वाला साइड बढ़ रहा है, पीछे वाला बढ़ ही नहीं रहा हो। अगर रिवर्स ऑर्डर देगा, शॉर्टेड दे देगा तो भी प्रॉब्लम है। क्विक शॉर्ट में दोनों प्रॉब्लम है। क्विक शॉर्ट आइडल कंडीशन क्या है, ये है लिस्ट हाफ 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 डिवाइड हो, उस केस में एन लॉग एन रहेगा। वर्स्ट केस कब देगा, अगर लिस्ट आपका रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टेड है या इवन शॉर्टेड भी दे दे तो भी आपका रिजल्ट ऑर्डर एन स्क्वायर आएगा। राइट राइट। ठीक है, तो ऑल अबाउट दिस है कि आपको थोड़ा सा मेंटली मतलब इस तरह से पढ़ना है बच्चे, ताकि ना मतलब ब्लाइंड ना पढ़ो एकदम। सर वो मास्टर मास्टर करके क्या बोल रहे थे आप? मास्टर मेथड सॉल्व करने का भी मेथड है बच्चे, जैसे रिकरेंस रिलेशन आ गया। ठीक है, मान लो जैसे ये आपने रिकरेंस रिलेशन, एक मैं दिखाता हूँ भाई, आपने लॉजिक लगाया ये वाला, जैसे ये बन गया रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसी में था क्या? हाँ, पहले आपने ये बताया लॉजिक, ये बताया, ये बताया। जैसे ये देखो, आपको पता है क्विक शॉर्ट में बेस्ट केस हर बार लिस्ट आपकी हाफ हाफ हो रही है ना, तो आपने इस टाइप के लॉजिक, आपने इस तरफ से रिकरेंस रिलेशन बना लिया। अब ये एन लॉग एन आया कैसे, ये मास्टर मेथड मैंने लगा के सॉल्व किया यहाँ। ठीक है, मास्टर मेथड थ्योरम आपके बुक्स में गिवन है, उसको पढ़ लेना। इवन मैं आपको शो करवा देता हूँ क्या होती थ्योरम, है ना, क्योंकि पेपर अपना लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करके देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। ठीक है, आपको मास्टर मेथड भी मैं बता देता हूँ इसमें अगर है तो। सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बतानी होती है? बिल्कुल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बेटा अभी कंसेप्ट नहीं है, अभी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ज्यादा है। स्पेस हमारे पास लॉट ऑफ अवेलेबल है, तो दोनों कॉमनली हम करके बोल देते हैं ऐसा, लेकिन अभी हमारे पास उसकी इतना वो जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं है। ये बबल शॉट पूरा आपका शानदार यहाँ गिवन है। ठीक है, पूरी एनालिसिस के साथ आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा ये। तो सर ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, ये भी आंसर वगैरह में नहीं लिखना है, सिर्फ टाइम नहीं, जरूरत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं में? है, कॉम्प्लेक्सिटी, ओनली कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ठीक है। अगर वो आपका थ्योरी कोच क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन, तो आप स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरिकल एक्सप्लेन कर लो, लेकिन मैथमेटिकल और न्यूमेरिकली तो स्पेस हमारे टाइम हमारे स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, राइट स्पीड की प्रॉब्लम है ना। राइट। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पीड पे फोकस हो गई है। आप फोन लेने जाते हो तो आपको पता है कि स्पेस की प्रॉब्लम है, आप बोलते हो रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हो, वो है। एक में मैं देख लूं मास्टर मेथड, ये देखो मर्ज शॉट अगर आपने जो किया होगा ना, तो इस तरह से पूरी एनालिसिस होती है बेटा मर्ज शॉट की। देखो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, ये पूरा ऐसे बनाना है, फिर इसकी ये रिकरेंस डिजाइनिंग करनी होती है, फिर उसके बाद इस पे फिर अगेन मास्टर मेथड लगाओगे इस रिलेशन पे, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ मास्टर मेथड, अगर मिल जाएगी आपको तो आई होप सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे मैम। हेलो, ये सब पढ़ लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। हाँ हाँ, पढ़ ली है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बेटर वे है। मतलब बताया तो ऐसे ही है, लेकिन वो थोड़ा सा, जैसे आपने तो सॉल्व किया है ना यहाँ पे कंप्लीट। हाँ, मैंने खुद से सॉल्व करके बताया हाँ बेटा। एग्जैक्टली, हाँ ये आपने खुद सॉल्व किया है ना इसमें। मैं तो डेप्थ में पढ़ाया, मैंने कोशिश होती है बच्चों को डेप्थ में पढ़ाने की। मैं कम पढ़ाऊं, लेकिन सोचता हूँ कि जितने फंडामेंटल हैं सारे क्लियर हो जाए उसके, क्योंकि यहाँ टारगेट देखिए, अब ये चाहिए, देखिए अब ये भी देखो आपने प्रॉपर सॉल्व किए हुए मैंने, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये भी आपने पढ़े ही होंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन इसमें पूरा विद सोल्यूशन है, मैंने सॉल्व किया हुआ प्रॉपर, और इसमें केस स्टडी भी ली है मैंने, है ना। ठीक है, तो मैं आपको एक मास्टर मेथड का दे देता हूँ, अगर मिल जाए आपके लिए तो बेटर हो हाँ जाएगा। जी हाँ जी। मास्टर मेथड आता है कि नहीं आता है, ये सच सच बताओ आपने। नहीं नहीं सर, अभी तो देखना पड़ेगा। तो देख लेना बच्चों, मैं कह रहा हूँ इस तरह पढ़ोगे कुछ कोई पढ़ने का फायदा नहीं, पेपर केवल पास होगे, लॉजिक कोई बिल्ड नहीं होगा आपका। ये मैंने हफमैन कोडिंग पढ़ाई थी, देखो हफमैन कोडिंग में पूरा कोड लगा, ये भी आपके सिलेबस में है है ना। सिलेबस, करेक्ट, हाँ जी। उसके बाद ये आया था पूरा, ये पूरा कोड एनालिसिस कराया, फिर इसको इंपोर्ट किया है पूरा किस तरह से बनता है हफमैन ट्री। चलो मैं आपको मास्टर मेथड कहाँ गया यार, देखो ये होगा तो यहीं पे, उसमें 3 केसेस होते हैं। ठीक है, मिल जाए तो आपका बेटर हो जाए। ये तो आपकी लैब है, इसको भी छोड़ दो।
ये रहा शायद, ये आई थिंक यही होगा यहाँ पे, ये रहा, मिल गया। मैंने पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया है जब भी पढ़ाया। तो सबसे वो ये प्री प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, आपका डिवाइड एंड कॉन्कर का कंसेप्ट रिकरेंस का भी बता दीजिए। मान लो कोई दिस इज पी प्रॉब्लम, अब इसको आपको डिवाइड करना है, यानी sp1 sp2 sp3 डॉट डॉट, ठीक है। फिर अगेन आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे तो वापस p मिल जाएगा, यानी डिवाइड, और दिस इज प्रोसेस हियर इज कॉन्कर एंड फाइनली कंबाइन। तो अब इसे एक्चुअल में हम इसका रिकरेंस रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखो, मान लो कोई tn एक प्रॉब्लम थी, आपने at यानी कोई ना कोई ये था, ये भाई n बाई b कर दिया, fn कर दिया, है ना। साइज ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज साइज ऑफ ईच प्रॉब्लम, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ कंबाइनिंग द प्रॉब्लम, है ना। और ये होल प्रॉब्लम, तो इसी को कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम बेस है आपकी, बहुत सारी प्रॉब्लम है बेस है इसमें ना। क्विक शॉर्ट बेस है, बाइनरी सर्च बेस है, एक मास्टर मेथड बेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें बेस है ना। राइट। आपने अब इसके बाद दिस इज अ मास्टर, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप इसको अगर देख लें 1 मिनट में काम, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया आपको, देख लो सिंपल है। डिवाइड एंड इसमें कंडीशन, प्री कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्यों है ऐसा, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये पूरी होल इक्वेशन को जीरो कर देगा, तो फिर आप मास्टर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड या बैकवर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस दैट केस तो लिखना ही पड़ेगा पहले में, जैसे आपने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, हाँ, ये कंडीशन है आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो मास्टर मेथड एक्सप्लेन करवाता तो पूरा, अगर न्यूमेरिकल देता तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो अब इसमें आपको केवल आप उन्हीं इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला जो इस फॉर्म में गिवन हो, यानी टी एन दिस इज अ फॉर्म, इसी फॉर्म में गिवन हो, उसी में अप्लाई कर सकते हो, यानी एन बाई बी की फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, हाँ जी। जो एप्लीकेशन एन बाई बी की फॉर्म में नहीं होंगी उस पर आप अप्लाई नहीं करो, उस पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल दोस टी मेथड भी उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हो जो दिस एन बाई बी की फॉर्म में हो। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर के फॉर्म में। अब यहाँ देखो, बड़ा सिंपल सा, एक हमारा टर्म एन लॉग बी ए होता है, दूसरा एफ एन होता है, सिंपल सा। हाँ जी। ठीक है, इसमें तीनों टर्म को कंपेयर करते हैं। अगर एन लॉग बी की पावर ए ग्रेटर देन एफ एन होगा तो आपको क्या आएगा, कंप्लीट टी एन इक्वल टू लॉग एन, आपका वही आ जाएगा, जो ग्रेटर पार्ट है वही लीड करेगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसी को आप थीटा एन लिख दोगे। सेकंड में अगर ये वाला आपका लेस देन है और एफ एन बड़ा है, कंपैरिजन है, तो आपका जो बड़ा पार्ट है वही लीड करेगा। मैंने बोला ना, बड़ा पार्ट ही लीड करता तो एफ एन हो गया। और थर्ड केस है कि दोनों इक्वल हो जाए, है ना, तो उस केस में क्या करना, जो आपका एन लॉग बी एन का जो भी आंसर है इनटू लॉग एन कर दोगे, ये इसका नॉर्म्स है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा नॉर्म्स है। अब एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको बता के करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखो। अब ये क्वेश्चन से आपको गिवन है, आपको एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है, ए की वैल्यू, अभी इक्वेशन साहब, ए की वैल्यू क्या है, ये है, बी की वैल्यू ये एफ एन है, ये इस फॉर्म में है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक, आपने क्या किया, उसके बाद आपने इक्वेशन लगा दी, मास्टर मेथड अप्लाई हो सकता है, एन लॉग बी की पावर ए आपने लिख दिया। ठीक, राइट। अब ये एफ एन लिख दिया। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू कितने है, 2 है। आप यहाँ लगा दो एन लॉग बी, ये पावर में एन लॉग बी यानी 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा लॉग एन में 1 हो जाता है, एन की पावर क्या आ गया 1 आएगा, इक्वल टू एन आ गया। अब देखो यहाँ कंपैरिजन, ये वाला एन और ये वाला एन इक्वल है कि नहीं, यानी केस नंबर थर्ड, आपका जो भी रिजल्ट आया उससे क्या करना है, लॉग एन से इनटू करना है, मल्टीप्लाई कर देना। राइट, हाँ जी, सिंपल, बात समझ में आई। करेक्ट। तो बहुत ये है कि सही ढंग से अगर आपने इसको सही से पढ़ा तो इसमें मेरा रिजल्ट 100% रहता है। अगर आपने सही से पढ़ा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे इस वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे हाय भेज देना अलग से, मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक, अब अपना लास्ट ईयर का पेपर भी खोल के आप ओपन करेंगे ना, ऐसे ही आपका ये है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, ये सारी चीजें आप देख लेना अच्छे से ना। ओके सर। चलो आप वो करो, ये आपका ये वाली चीज भी देखना है आपको, बहुत जरूरी है ये चीजें। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, है ना। हाँ जी, ठीक है, इस पे देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये दे दिया। अब ये भाई ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
इसको करना। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ जो मैंने दिए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एनी स्टूडेंट हैव डन? प्रदीप, आपने हाँ जी। करेक्शन कर दिया क्या? बबल शॉट कर दिया सर, मैं दिखा दूं एक बार? अब चलो कुछ एरर आ रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। टाइम ले लो, हमारे पास नहीं अभी है। नहीं एरर आ गए थे, मैंने रिजॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन यूजर इनपुट नहीं लिया सर, वैसे ही किया है जो कोई पहले। नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, यूजर इनपुट लेके स्कैन फंक्शन लगाना बस। हाँ जी जी स्कैन ले लो, उसके बाद वैल्यू स्टोर करवा लो, बाकी वो प्रिंट करवा लो। हाँ जी। इसमें कोई बड़ी एक बार बताना आप। विजिबल है क्या सर? विजिबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसी में ही चेंज कर दिया है। ये दरअसल मैंने वो स्नैप ले लिया था जो आपने दिया था ना, तो ये नंबर्स आपने दिए थे 10, 55 और ये इस तरह के ना बबल शॉट के लिए। और आपने इसमें ये पूछा है, क्वेरीज ये थी कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑपरेशन परफॉर्म, नंबर ऑफ टाइम्स कंपैरिजन ऑपरेशन इज परफॉर्म, और इनर आउटर लूप कितनी बार आइटरेट हुआ ये पूछा है आपने। कंपैरिजन ऑपरेशन इज परफॉर्म, ये मैं एक बार देखना पड़ेगा, ये मैंने शायद लिखा नहीं होगा सर। ये हमारी वो जो ओरिजिनल लिस्ट है जो आपने दी है ना, वो ये वाली है। इसमें 10 2 टाइम्स आया हुआ है, फर्स्ट भी 10 है और लास्ट भी 10 है, और ये अनसॉर्टेड है। अभी इनको इग्नोर कर देते हैं एक्स को, ये वो पहले का ही मेरा कोड है ना। ये मैंने लास्ट का आपके एग्जाम से ही लिया है, प्रैक्टिकल के एग्जाम से क्वेश्चन लिया था। हाँ ठीक जी है, हाँ जी हाँ जी। तो अभी इसमें क्या है कि एक्स तो मैंने अभी वैसे ही छोड़ दिया, तो पहले वाला ही मेरा पार्ट चल रहा था उसमें। एन हम वैसे ही लेंगे, साइज जो है इसका जो हमने पहले लिया हुआ था। अब इसमें मैंने एक प्रिंट कर दिया कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, और ओरिजिनल लिस्ट क्या है मेरी, है ना। हाँ और फिर मैंने बबल सॉर्ट का मेथड बनाया नीचे, वो मैंने कॉल कर दिया जिसमें एलिमेंट्स पास ऑन करके और उसका साइज पास कर दिया मैंने। और फिर मैंने, क्योंकि अब बबल सॉर्ट चल गया तो ये एलिमेंट्स की रेफरेंस है इसका काइंड ऑफ, है ना, तो इसी में ही सॉर्ट हो जाएगा, मतलब यही एलिमेंट जो वेरिएबल है इसी में सॉर्टेड एरे सॉर्टेड एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे। और ये मैंने लिखा है यहाँ पे आई जे तो लूपिंग के लिए है, और टेम्प जो है स्वैप वाला जो हमारा ऑपरेशन रहता है उसके लिए है। फिर एक मैंने काउंट ले लिया है, इनर लूप का काउंट क्या है, क्योंकि जो बाहर का है फोर लूप वो तो मेरे को आई से ही पता लग जाएगा कि जो आई का लास्ट होगा तो उतनी बार ही लूप चला है आउटर तो। और जो फोर लूप इनर वाला चल रहा है सर, वो जे प्लस प्लस जितनी बार चल रहा है ना, जितने एलिमेंट्स हैं, तो वो मैंने इनर लूप में ना ऐड करता रहा मैं उनको यहाँ पे जे को, क्योंकि ऊपर मैंने इनर लूप काउंट 0 लिया और उसी में ही जितनी बार जे चला तो जे की वैल्यू जो आई वो मैंने प्लस कर दी पिछली वैल्यू में। ठीक है, तो ये मैंने फिर बाद में प्रिंट कर दिया इस मेथड से बाहर निकलने से पहले, कितनी बार आउटर लूप चला और कितनी बार इनर लूप चला है। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। और फिर ऊपर जाके मेरे पास जब रिजल्ट्स आ गए यहाँ पे एलिमेंट्स में, तो मैंने फिर सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर दिया फॉर लूप लगा के। तो अभी नीचे अगर देखें ना, मैं एक बार दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, है ना, तो 11 एलिमेंट्स है, ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये थी, ये थोड़ा वो स्लैश एन, हाँ न्यू लाइन लगा, हाँ न्यू लाइन लगा दो। हाँ, तो ये 10 टाइम्स आउटर लूप चला है और हाँ इनर लूप चला है 55 टाइम्स, मतलब प्लस प्लस करके। ठीक है, और ये सॉर्टेड एरे आ गई 10 10 15, मतलब ये सही है सर बिल्कुल रिजल्ट इसका। हाँ ये तो सही है एकदम, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन आपने जो इम्प्लीमेंट करा ना, इनर आउट का काउंट कराया, वो एक्सेलेंट कराया आपने। क्या करते हो आप? इन अभी तक बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार कराया था, किया नहीं था इन्होंने। आप क्या करते हो प्रोफेशन? सर मैं तो बैंक में हूँ सर मैं तो। बैंक में हो, लेकिन बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मुझे लगा कोई आईटी प्रोफेशनल हो। ठीक है। बस वही मेरे को लगा कि ये जो लूपिंग का आपने पूछा था कितनी बार लूप चले, तो यही मेरे नहीं, को। वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन देखो उसमें मैंने दिया। एक्चुअली आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं,
हाँ ठीक है, जी। कई बार वो ये तो अब कर लिया आपने, कई बार वो लूपिंग को पेंट कराया नहीं कराया, कितनी बार चला, ये बहुत आपने मतलब एक्सीलेंट काम किया, मतलब ये समझ लो कि अब तक के जितने बच्चे आए हैं सब स्टेप पढ़ने, लेकिन किसी ने नहीं किया, ये आपने एक्सीलेंट करके दिखाया। ठीक है ठीक, सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर द तो फीडबैक। अब तो आईटी ऑफिसर बनने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है। बस सर, बस ये एमसी हो नहीं जाए। हमारे हाँ नहीं, हमारे यहाँ एक मैडम थी, अभी आई थी, अभी नई नई आई थी, वो अभी इस बार बैंक ऑफ यूनियन में शायद झारखंड में आईटी ऑफिसर सेलेक्ट होकर चली गई। ओके। डेमो टीचिंग में रहना तो कुछ दिनों के लिए आई थी वैसे, ओके। लेकिन आईटी ऑफिसर में होगा, अभी जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट की हो एमसीए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसी तस्वीर में थी, लेकिन आईटी ऑफिसर मिल गया, चली गई मैडम। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपका मतलब तैयारी उस लेवल की चल रही है कि एक्चुअल में व्हेन यू आर डूइंग द एग्जाम है ना, कॉम्पिटिशन लेवल यानी आईटी ऑफिसर के लिए, तो वो वहाँ ये लॉजिक पूछे जाते हैं, क्यों, कैसे। हाँ जी, हाँ ये जी। प्रोग्राम तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, नेट पे मिल हर जगह, प्रोग्राम के तो बतेरे पड़े हैं। हाँ जी, ठीक है, प्रोग्राम तो मिल ही जाते हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल, थोड़ा। प्रोग्राम चैट जीपीटी है, एआई हर चीज है, लेकिन हुँ, क्यों, कैसे, वाई, वो आपने कितना गेन किया है, आपने जैसे थॉट प्रोसेस लगाया कि सोचा ये करता हूँ वो करता हूँ, वो चीज सही है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में दिया था। तो मेरी उम्मीद थी कि बस कोई बबल शॉट ही एक्सप्लेन इतना ही इम्प्लीमेंट करके के दिखाएगा, लेकिन आपने वो उसके आगे का भी कर दिया। और हाँ ये जी, जो क्वेश्चन है ना, हाँ ये कोई जी। अलग से नहीं है, ये आपके इग्नू के प्रैक्टिकल फाइनल ईयर एएससी जो एनुअल प्रैक्टिकल होगा उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो जब भी मैं वहां से डाउनलोड करता हूँ लाइन शेयर के क्वेश्चन, फिर उसी क्वेश्चन को अलाइन करके यहाँ लेके आता हूँ, हाँ ताकि जी, बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। थैंक ठीक यू है, सर। इसका आंसर अगर आप शेयर पीडीएफ में हाँ जी, या हाँ, इसका आंसर कॉपी मैं करके ना स्क्रीनशॉट लगा दूँगा शेयर सर। कर दो, हाँ नहीं शेयर कर दो। ठीक हाँ, है, ठीक है। मेरे को शेयर भी शेयर कैसे कर करना? दो। शेयर अरे कैसे मतलब करना है सर? अरे इसे कॉपी कर लो आप, पूरे हाँ, को हाँ, कॉपी कर ले, अच्छा, वर्ड में पेस्ट कर दो या नोटपैड पे पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, नोटपैड पे पेस्ट कर दो, और अपने जो व्हाट्सएप का जो भी ग्रुप है उसमें उसमें डाल दो, ठीक स्टूडेंट ग्रुप में उसमें डाल दो, बाकी बच्चे भी कुछ सीखेंगे, देखेंगे करना है भाई, अब हमने क्या इम्प्लीमेंट किया आज, है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज ये, दूसरी चीज मुझे मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे डाल देना, मेरा नंबर है ना, आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। मैं दे देता हूँ आपको। आप चैट एट में ही डाल दीजिए। सेवन में डाल रहा हूँ, 87, कौन से बैंक में हो अभी, 8766399396, सर मैं तो एक डेनिश बैंक में हूँ। कौन सा, डेनमार्क का बैंक है सर एक ना। डेनमार्क का स्पेनिश में समझ गया। हाँ जी, 8786669362। ओके सर। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है। चैट बॉक्स में जाते हैं। हाँ जी, ये आगे देखो, 8766399362। आपने मतलब मेरी बहुत एक्सीलेंट काम किया है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। कोई बच्चा है जो अपने आप को जो अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहता हो, जैसे कि प्रदीप राठी सर ने और बाकी लोग हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, प्रेजेंट करो। सर मैंने दोनों सर्चेस बना लिए। हाँ हाँ बेटा, प्रेजेंट करो। जी सर, थोड़ा लेट हो गया सर, मीटिंग पे था। ऑफिस चल हाँ रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे बस प्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप काम कर रहे हैं ये पता चलता है मुझे। और क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, जैसा कि आपको दिख रहा है, 5 7 10 मिनट है हमारे पास। ठीक है, और जो प्रदीप, आप थोड़ा सा और मेहनत करना, और वो क्वेश्चन उसमें जो फ्रैक्शन लेफ्ट सेट है वो कल क्लास के लिए रखेंगे टारगेट उसका। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए प्रेजेंट करो। जी सर, एक मिनट। You can also explain, first you run. If the program successfully run, then you explain the logic. जी ठीक सर, है, how to work. तो सर यहाँ पे टारगेट हम जो सर्च कर रहे हो 40 ले लेते हैं, और ये सक्सेसफुली रन कर रहा है सर। हम अगर यहाँ पे गिनते हैं तो 0 1 2 3 4
फोर्थ इंडेक्स पे हमें हमारा टारगेट मिल जाता है। तो बाइनरी सर्च में हम ये कर रहे हैं कि हम पहले एरे का साइज भेजते हैं, एरे का साइज भेजते हैं, लेफ्ट भेजते हैं, राइट भेजते हैं और टारगेट भेजते हैं। लेफ्ट लेफ्ट और पहले हम वाइल लूप में घुसने से पहले लेफ्ट अगर राइट से छोटा है वो चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम एरे का हाफ मिड निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करके और डिवाइडेड बाय 2 करके एरे का मिड निकालते हैं। अगर हमें मिड पे ही अपना वैल्यू मैच मिल जाए तो हम यहाँ से ही मिड का इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं। या फिर हम अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम नीचे आते हैं, नीचे आके यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एरे के मिड में जो एलिमेंट है वो हमारे टारगेट से छोटा है क्या। अगर छोटा है तो हम लोग लेफ्ट हाफ को इग्नोर कर देते हैं, राइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देते। फिर यहाँ से वापस हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं मिड प्लस 1 करके, और ऐसे लूप कंटिन्यू करके हम तब तक इस लूप को कंटिन्यू करते हैं जब तक हमें ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती कि हमें मिड पे हमारा टारगेट मिल जाए। जैसे ही हमें मिड पे हमारा टारगेट मिल जाता है हम मिड का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, जो इस केस में 4 है। हाँ, लीनियर सर्च में हाँ। लीनियर सर्च में सिंपली हम बस लूप रन करते हैं, लूप रन करके एरे का इंडेक्स के वैल्यू के साथ हमारा टारगेट को मैच करते हैं, जहाँ पे मैच हो गया हम उसी इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं, जो कि यहाँ पे भी 4 आ जाता है। और मैं दोनों में क्या डिफरेंस है, बाइनरी और लीनियर में, कंडीशन में क्या डिफरेंस है? सर बाइनरी हम तब तक रन करते हैं जब तक मिड मैच नहीं हो जाता। मतलब बाइनरी में हम एरे को डिवाइड कर करके जब तक मिड मैच नहीं हो जाता तब तक हम रन करते हैं लूप को। और लीनियर एक लीनियर सर्च है, मतलब हम एवरी एलिमेंट को फर्स्ट से लेके जब तक वो मैच नहीं हो जाता तब तक हम सर्च करते रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, सारी चीजें ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने वो लूप वाला किया था क्या, कितनी बार लूप इनर आउटर चल रहा है कैलकुलेट करके? क्वेश्चन में लिखा था, काउंटिंग करवा लेते ना, कितनी बार का आई कर चला, कितनी बार जे चला, उसको प्रिंट करवाना था बाइनरी में। सर बाइनरी, ये बाइनरी नहीं, सॉरी, आपने बबल नहीं किया, ठीक है। बबल लास्ट क्लास में कर दिया था सर। हाँ ठीक है, आपने कर दिया तो इस ओके, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहा था, आप क्या करते हो बच्चे? जी सर। व्हाट यू डूइंग राइट नाउ एज अ प्रोफेसर? Sir, as a profession, I am currently in a company. I edit scientific journals. ओके, एडिटर हो साइंटिफिक जर्नल में? जी सर। एडिटर की पोस्ट पे साइंटिफिक जर्नल में? हाँ सर, साइंटिफिक जर्नल में हम एडिट करते हैं सर। अच्छा, कौन सा जर्नल है? सर एक्चुअली हमारा कंपनी का नाम TNQ टेक्नोलॉजीज है। हम PhD स्कॉलर्स या जो जर्नल्स आते हैं उनका लैंग्वेज एडिटिंग करते हैं। मतलब मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ लैंग्वेज एडिटिंग का है, ओके, बहुत बढ़िया। पोर्टफोलियो भी है। मेरा करंट पोर्टफोलियो सिर्फ लैंग्वेज एडिट करना ही है। You send me hi your name लिख के, because I have also write a lot of research paper in scientific journal. ठीक है, I need your help. I will definitely share you. अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और I also give the credit in your research, मतलब my research paper. ठीक है, also give the author name, as a author name I declare you. ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, which one who is contributed to publish in a research paper as per norms? ठीक है, तो your contribution must be notable. आवाज ब्रेक हो गई सर, आप वापस। मैं कह रहा हूँ कि जो भी है लोग हैं, जैसे मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, अगर आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसका क्रेडिट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी सर, ऑथर में जो भी आपका रहेगा तो वो जरूर से मेंशन रहेगा। सर एक्चुअली हम रिसर्च पेपर एडिट करते हैं, मतलब हम रिसर्च के कंटेंट में कुछ एडिटिंग नहीं करते हैं। हम जस्ट
जैसे कि चाइनीज पेपर होता है या ईरानियन पेपर होता है, उनका इंग्लिश लिखने का तरीका सही नहीं होता, तो हम सिर्फ अच्छा ग्रामेटिकली उसको स्ट्रक्चर करते हैं ताकि वो समझ में आए लोगों को। हम डायरेक्टली अच्छा रिसर्च के कंटेंट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अगर मुझे आपकी नीड हुई ना किसी पेपर में तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक बार हायर टैक्स लिख देना। जी जी ठीक सर। है, जी सर। चलो ठीक है। ओके फॉर टुडे फॉर द क्लास। ठीक है, ऑल गुड लक। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन लैब सेट प्रॉब्लम का टारगेट को रखेंगे पहले, क्योंकि वो रह गया आज की क्लास में। तो आप लोग पहले से फ्रैक्शन लैब सेट प्रॉब्लम लॉजिकली थ्योरेटिकली पढ़ के प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन देख के आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, Alright, स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है फ्रैक्शन लैब सेट प्रॉब्लम जो मैंने दिया है। ठीक है, 10 नंबर दिख रहे हैं ना आपके, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है वो। ठीक है, ऑफ कोर्स आप लोगों का प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो जाता है, केवल लॉजिकल पूछते हैं, ऑफलाइन इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए। वाई वाई होगा ना सर ऑनलाइन का तो? हाँ, ओनली वाइवा, ओनली लॉजिकल लॉजिक पूछेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा ना, ये हाँ क्या जी। होता है, ये लूप क्यों चल रहा है, वो लूप चलता है, वाइवा ही होता है। ओके ओके, ठीक है सर। इसमें जज कर लेते हैं कि बच्चे को कितना आता है। जैसे मुझे जज करना, तो मैंने अभी 2 स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी जज कर लिया है। ठीक है, ठीक है। ओके डियर, टेक Can केयर। I? थैंक यू सर। ओके फॉर टुडे क्लास इज ओवर। हाँ अब्दुल, बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? जब वो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाया था वो दिखाना है क्या? दिखाओ क्या? हाँ हाँ, यू कैन प्रेजेंट। Abdul, you can हाँ present last 5 minutes left. You can start your presentation. I will stop my presentation. हाँ ओके Okay, you can present your answers. Abdul Nayak. हाँ sure. Sir, can you show my screen? Do you show my? Can you नहीं, see अभी my आपकी screen, sir? स्क्रीन, हाँ नहीं नहीं, right now your presentation is not yet started. प्रदीप, तांगर, अब्दुल की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही है। Abdul, you Just can present your screen. You go your desktop या even laptop where is a arrow like button. उस click on this button. Right now, present now that's person. now is it okay? Now, yes yes. Now your screen is presented. ठीक है, you can run successfully code. Can you explain how to work? You, Sir, which language? I think you use C++. C plus, yeah, C plus plus. ठीक है, you can use C++. Okay, you only explain the logic part. Okay, okay. Actually, I'm not having that much computer science background. I'm from mechanical engineering background. So this is a simple program using a function only. I have not used any recursive function. It's Okay, okay. okay. Okay, nahi, it's okay. You have a good try. But I, as a teacher, as a professor, I suggest you should download a book, S1 Connector, Fundamental of C. ठीक है, Yeah. must be read all this terminology. ठीक है, Yes. then because you should be clear about the function, you should be clear about written log. So otherwise, no meaning. If the mentally you are not attached, yeah, mentally you have not accept all the Yeah. basic concepts, so Yes. it is very difficult to in computer science to survival. Okay. Yeah. ठीक है, So I'm learning. तो I'm आप learning. थोड़े, I'm learning them. हाँ, आपको एक दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसमें आप सी अच्छा सीख सकते हो। Yes. ठीक है, Yes. Yes. एक कोड विथ हैरी है, तो मतलब यूट्यूबर है, वो अच्छा बता पड़ा, मतलब उसकी उसकी आप उसको भी रेफर कर सकते हो। मतलब Okay. एटलीस्ट आप ये करो कि आपको मतलब सब क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको जब बहुत ज्यादा सी तो आपको Okay. दिमाग में टिप पे होना चाहिए। Okay. ठीक Okay. है, चलिए ठीक है, So वेरी this गुड। is अब function. हाँ This is a बताइए। function for binary search.
and हाँ. uh, first binary search array define किया इधर, और integer sizes is a variable for size of the array, and this is the target which we are searching for. Okay. Two variables left and right define किया. Right means sizes. Sizes is the variable for size of the array. Okay, so sizes -1. So Okay. this is the loop for searching, while left is less than or equal to right. Okay, first we are finding the midpoint of the array, which is given by left plus right minus left divided by 2. That will return give the mid point of the array. Then here we are checking if this value at the array at the middle of the array is equal to the target we are searching, then it will directly return that value. Okay. Okay. Then if it is less than the target, the middle element is less than the target, it will advance the left variable left by 1, mid plus 1. Otherwise, that is if array of middle position is greater than the target, it will decrease the right by 1. Okay. Okay. Then mm, uh, then if this condition is not met, it will return -1. Then this is the main function which calls the binary search function. So this is the example array. I have defined a variable sizes to store the size of the array. Okay. Then suppose we are searching for the target 10. Then the main function calls the binary search function here. Then first it will find the middle value, as I explained the function logic here. So it finds the position 4, index 4, that means this position, 10, and returns a value at that function, returns a value at the fifth position, which is 10. Okay. Okay, Abdul. Okay. ठीक है, program successfully run. ठीक है, Yes. all you have explained. ठीक है. Okay. Okay, good. Sir, you mentioned about some WhatsApp group, but I am not added in any of the groups yet. Anyone who is right now login as a admin, कोई यहाँ पे एडमिन है जो इन बच्चे को क्या कहना, अब्दुल नागर को ऐड कर सकता है ग्रुप में? अभी है क्या कोई यहाँ एडमिन? एक्चुअली हमारा स्टडी रीजनल सेंटर इधर केरला का है, वडोदरा, लेकिन we got a mail recently that since that center is not offering MCA oil, we are shifted to some other RC. Okay. Don't worry, no problem. You can text me your number. Hi, you send the hi. I add you in the group, current group. If the I am admin, otherwise I text the message. Who is admin? You add as a group member. Okay. Okay, you can text me. You take my number from chat box. Okay. I send you again number in chat box. You can right now note down my number 8766. I have noted it. You mentioned previously. I noted it. अच्छा, you know right now in a meeting में I think अभी I right now I send in a chat meeting. Where is send the your attendance? I send my number in Google meetings chat box. No, sir, you just now wrote it in the chat box, no? अच्छा, अभी आप लिख दिया था ना आपका नंबर chat box में. okay. For some other student. Okay. So Then I send my chat box. I send my number. Oh yeah, you send. ठीक है. You note my number 8766.
Let's see. 8766399362. Is it right? 8766399362. Yeah. You can text hi. I add Yes. you to group. Okay, sir. Thank you. ठीक है. Thank you. और Thank you. you mention them your name. ठीक है. Yes. ठीक है. Okay. Okay. Today class is finished. Next class will be tomorrow, as per my mentioned schedule. ठीक है. Okay, Abdul and all other students for today's session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. Thanks. Bye.